Yeah, hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to continue our tools of recombinant DNA technology. We have completed about the enzymes, the first tool of recombinant DNA technology. And today we are going to start about vectors, the second tool of recombinant DNA technology. So as in enzymes, I have told you about different type of enzyme which has been used in opening the cell, cutting DNA at a specific location, then joining DNA, synthesizing DNA, and even to alter our ends, that terminal transferase, and even to prevent the religation of DNA that was done by alkaline phosphatase. That was the part of enzymes in recombinant DNA technology, in tools of recombinant DNA technology. Today we are going to discuss about vectors, those molecules which are acting as a DNA vehicle, those molecules which are used to carry my gene of interest into the host cell. So likewise, I will be discussing about, first I will be telling you what is the characteristic feature of a ideal vector. Then we will be learning about examples of vector. First we will be discussing about plasmid, then bacteriophage, then modified combination of plasmid and bacteriophage. Then I will be telling you about bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, transposons as plasmid, and even we will be talking about certain viruses. Apart from bacteriophage, I will be telling about retroviruses which has been used as vectors. So this topic, I guess it would be completed, this part of recombinant DNA technology tools, this tool actually, the vector, it would be taking about 2 lectures. So let us start our next tool, that is a continuation of tools of RDT. RDT is recombinant DNA technology, and second tool which we are going to discuss today is vectors. सी वेक्टर का कंडीशन आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू द होस्ट, हु इज होस्ट देयर? ह्यूमन. वी नीड अ वेक्टर and that vector is Anopheles mosquito. Similarly, for the transmission of alien DNA into the host organism, which could be a plant cell, which could be animal cell, which could be a prokaryotic cell or bacteria, whatever DNA molecules are used to transfer our gene of interest. Now listen to me carefully. The DNA molecule which has been used to transfer my gene of interest into the host is a vector. Vectors are commonly known as DNA taxi. Vectors are commonly known as, these are the taxi or these are the cab for transporting my gene of interest up to the host cell. So if you have been asked to write about the definition of vector, you will write it's a carrier DNA molecule or vehicle DNA molecule that deliver a foreign piece of DNA, into the host organism. A vehicle or carrier DNA molecule that deliver our gene of interest, that piece of DNA which is of our interest, our gene of interest, into host organism. What you have learned up to yet, वहीं से आपको वेक्टर का कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे. लेट्स से दिस वाज द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म इज ई कोलाई और बैक्टीरिया, जो आप अब तक पढ़ के आए हैं. याद है रिकॉम्बिनेशन, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, एंड दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट. And to deliver, this is antibiotic resistant gene, let's say this is your gene of interest, and to deliver this gene of interest you need another molecule. Remember that plasmid was being used there, and this DNA can easily get ligate because it has been digested from the same restriction enzyme. This DNA can be ligated with this molecule, and then this molecule would be transferring my gene of interest into the host. So this molecule here which is used to transfer, it is a piece of DNA. This piece of DNA which is used to transfer my gene of interest into the host organism is a vector. So am I able to
make you understand the concept of vector, a DNA vehicle, DNA carrying molecule, DNA cab or DNA taxi. These all are the other name of vector. So as I told you, like Anopheles is for plasmid in case of malaria infection, similarly vector is for Anopheles is for plasmodium in case of malaria infection. Similarly vectors are for gene of interest if gene of interest need to go inside the host organism. Is that clear? Now this vector enable the linking of my gene of interest with the this vector enables the easy linking of my gene of interest. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए मुझे एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए भी चाहिए जिसके साथ मेरा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट कर सके, और वो पीस ऑफ डीएनए क्या होता है, दैट इज अ वेक्टर. सो आई विल मेंशनिंग 2 पॉइंट हियर. फर्स्ट, वेक्टर enables easy ligation of my gene of interest to form a recombinant DNA molecule. It enables easy ligation or easy linking of foreign DNA molecule or gene of interest. It enables easy linking of foreign DNA मॉलिक्यूल. समझ में आता है, इनके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होती है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट से ये ओपन अप हो जाते हैं और उन कट एंड के साथ आप डीएनए मॉलिक्यूल भी लाइगेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट व्हाट इट हैज़ बीन इनेबलिंग, इट इज़ इनेबलिंग द लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो याद रखेंगे, इस वेक्टर की वजह से ही वेक्टर मॉलिक्यूल के अंदर ना हम कुछ आइडेंटिफिकेशन टैग लगा देंगे, कुछ मार्कर जीन लगा देंगे और उससे हम पता कर सकते हैं कौन से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल और नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंसेप्ट अभी समझ में आएगा जब थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा इन दिस लेक्चर ओनली. सो फॉर द टाइम बीइंग आई एम मार्किंग ए स्टेटमेंट दैट दे प्रोवाइड अस टू सेलेक्ट, they provide a easy selection of recombinants from non-recombinants. They provide or they enable selection of recombinants from non-recombinant molecule, from non-recombinant molecules. अभी समझ में आएगा रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं. तो क्या सीखा आपने कि वेक्टर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको डीएनए व्हीकल, डीएनए कैरियर मॉलिक्यूल कहते हैं और वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट ऑर्गेनिज्म तक डिलीवर करने में हेल्प करता है. और सिर्फ डिलीवर ही नहीं, उसको आगे सर्वाइव करने में भी हेल्प करेगा, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. इतना समझ में आया. देखो, जो वेक्टर होता है इट कैन अंडरगो इट्स ऑन रेप्लिकेशन. हमने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा है कि वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं. बैक्टीरियोफेज वगैरह भी मैच्योर हो जाते हैं बैक्टीरियम के अंदर. सो जो हम वेक्टर का हम करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ेंगे, डेट अ वेक्टर कैन अंडरगो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन टू इंक्रीज द कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन. अ वेक्टर कैन अंडरगो independent replication to increase the copy of itself as well as desired gene. The copy to increase the number or copy of to increase the copy of desired gene. भाई जैसे जैसे वेक्टर जो है वो ऑटोनोमसली एप्लीकेट करता है और जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई करेगा मेरे डिजायर्ड जीन की कॉपी भी इंक्रीज होती चली जाएगी. तो वेक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इट शुड बी इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल. और जो होस्ट क्रोमोसोमल मटेरियल के इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट कर सकता है, दैट वुड बी ए गुड वेक्टर. इज दैट क्लियर? अब आप दो तरह के वेक्टर पढ़ेंगे. देखो आगे मैं आपको बताऊंगा, चलो ये बाद में मेंशन कर दूंगा शटल वेक्टर के बारे में. वेक्टर के अंदर ना भी 4 फीचर बताने वाला हूँ कि भाई वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स के लिए है कि प्रोकैरियोट सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट कर सकता है, उसको हम यूनी वेक्टर कह देते हैं, सिंपल वेक्टर कह देते हैं.
अगर कोई वेक्टर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है उसको शटल वेक्टर कहते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ शटल वेक्टर। शटल वेक्टर क्या होता है? इसके पास दो अलग अलग तरह की ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट होती है, ऑरियो साइट होती है, और ये दो अलग अलग तरह की होस्ट में रेप्लिकेट कर सकता है। इट हैव टू टाइप ऑफ ORI site. ORI is origin of replication and can multiply in prokaryotes as well as eukaryotes. तो एक ऐसा वेक्टर जो प्रोकैरियोटिक होस्ट और यूकैरियोटिक होस्ट दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करे उसको शटल वेक्टर कहेंगे, और जो सिर्फ एक के अंदर मल्टीप्लाई करेगा चाहे वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो उसको सिंपल वेक्टर कहेंगे। आगे चल के ये कंसेप्ट काम आएगा आपको। सो वेक्टर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करता है होस्ट में। वेक्टर की वजह से ही इजी लिंकिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल होता है और आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को। एक वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है होस्ट सेल के अंदर, किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज द कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन। आर वी डन अप टू हियर? नाउ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नंबर ऑफ प्लाज्मिड होते हैं इन डिफरेंट बैक्टीरियल सेल वो वेरी कर सकते हैं। जब हम प्लाज्मिड पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि चाहे ना बताऊं क्योंकि वो प्लाज्मिड तो आप पढ़ चुके हो। खैर मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो नंबर ऑफ प्लाज्मिड होते हैं अलग अलग बैक्टीरियल सेल में वो वेरी कर लेते हैं। जो नॉर्मल नंबर ऑफ प्लाज्मिड होता है बैक्टीरियल सेल में वो 1 या 2 होता है, मगर कुछ बैक्टीरियल सेल में 10 से 15 प्लाज्मिड भी मिल जाते हैं। तो number of plasmid varies in different bacterial cell. Normally it is 1 or 2 in number, but it can be from 10 to 15 in various bacteria or selected bacteria. Similarly, जो number of bacteriophage है, खूब सारे bacteriophage मैच्योर होते रहते हैं बैक्टीरियम के अंदर। What I am telling you कि autonomously replicating molecule भी मिल जाते हैं और बैक्टीरियोफेज भी बैक्टीरियम के अंदर मैच्योर हो जाते हैं। तो ये दो आइडियल वेक्टर की तरह यूज हो जाएंगे। तो therefore I can say, or therefore I will say that if we are able to recombine a piece of DNA with bacteriophage, if we are able to recombine a piece of DNA with bacteriophage genome or plasmid and introduce the same in a plasmid free bacteria, आपके पास ये एक प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया है और आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट कर दिया, चाहे वो बैक्टीरियोफेज के साथ लाइगेट किया या वो प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अगर प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरिया के अंदर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो व्हाट वुड वी गेट? द वेक्टर वुड बी मल्टीप्लाइंग and would be producing equal number of plasmid and bacteriophage that normally develops in it, right? Yes. मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी प्लाज्मिड या किसी बैक्टीरियोफेज को अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ किसी प्लाज्मिड फ्री होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे और ये इतनी ही कॉपी बनाएंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की जितनी ये अपनी बना रहे हैं। खैर ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। तो अब हम पढ़ते हैं किसी भी एक आइडियल वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ये कुछ ऐसा है कि भाई आपके पास ना आपको एक कैब बुक करनी है तो एक आइडियल कैब में क्या क्या होगा। तो सिमिलरली कैब बुक करने में जब आप कोई चीज़ देखोगे वैसे ही हम एक डीएनए वेक्टर को बनाने के टाइम या डीएनए वेक्टर को सिलेक्ट करने के टाइम देखेंगे। सो आइडियल फीचर्स और जनरल फीचर्स और लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन वेक्टर। देखो 4 फीचर पढ़ेंगे। उनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, उनके पास मार्कर जीन होना चाहिए, उनके पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट भी होनी चाहिए ताकि आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सके उसको काट के, और उसका जो साइज़ है वो छोटा होना चाहिए। सो आइडियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए वेक्टर, There are 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? ORI साइट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद रखेंगे, इसके अंदर क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए,
इसके अंदर मार्कर जीन्स होने चाहिए। एंड फोर्थ करेक्टरिस्टिक फीचर मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा साइज़ के बारे में। एक एक करके मैं चारों फीचर्स आपको बता देता हूँ और फिर मेंशन करते चले जाएंगे। देखो, साइट का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, और ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पहले भी डिस्कस किया था कि ये वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑन, अगर आप समहाउ अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर देंगे, लेट्स से दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड समहाउ यू हैव एंटर्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, तो मोस्ट लाइकली ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के साथ नहीं बाउंड है। अगर आप इसको ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर देंगे तभी वो आपका रेप्लिकेट कर पाएगा। अब अगर प्लाज्मिड के अंदर या वेक्टर के अंदर, मैं प्लाज्मिड वर्ड यूज़ ना करके वेक्टर के अंदर ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन की साइट है और ही साइट है, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। तो दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एलियन डीएनए शुड बी लाइगेटेड with the origin of application so that it can multiply into the host organism. I will write here, I will mention a statement. इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। Thus, it is very important that alien DNA is your gene of interest, must be ligated or linked with origin of replication or the site, right? Thus alien DNA must be ligated with oocyte so that it can make its own multiple copies. इज दैट क्लियर? देखो, ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ना कार के उस एक्सीलेटर के जैसा होता है जो कार को ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन का मतलब यही है कि द थिंग आर गोइंग ऑन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉपी नंबर भी डिसाइड करता है कि भाई आपका ये जो आपका गिवन सीक्वेंस ऑफ डीएनए कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, और अगर ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करेगा तो अच्छा ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन माने वेक्टर अच्छा है, और कम बार मल्टीप्लाई करेगा तो इतना अच्छा नहीं है। तो origin of application or site also control the copy number का मतलब हुआ कितने डॉटर सेल वगैरह बन रहे हैं। also control the copy number of vector as well as the copy number of my gene of interest। तो बच्चों, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा कि एक वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, oocyte होना चाहिए। एक अच्छी टैक्सी के अंदर, एक अच्छी कार के अंदर आपके पास होना चाहिए एक्सीलेटर, वो चलने लायक होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बताता हूँ मैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट, टू बी वेरी एग्जैक्ट, दीज आर रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, के उस वेक्टर के अंदर ऐसी साइट होनी चाहिए जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कर सके। अगर वेक्टर के अंदर वो साइट ही नहीं है तो आप उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर लिंक नहीं हो पाएगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर देयर शुड बी रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कुछ ऐसा है कि कार के अंदर ना सीट्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी जो कार है उसके अंदर बहुत ही स्पेशल टाइप की बहुत ही स्पेशल रेस्ट्रिक्टेड स्पेस की सीट है। उसके अंदर 2 सीटें जिसमें सिर्फ 5 साल तक के बच्चे ही बैठ सकते हैं, और मेरे पास जो पैसेंजर है वो लेट्स से 60 ईयर का है, वो 2 क्विंटल्स का है। तो क्या मैं उसके ऊपर फिट कर पाऊँगा? आंसर वुड बी नो। तो सिमिलरली जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट है वेक्टर के अंदर, उसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं।
यू गॉट माई पॉइंट। और उस रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट टू बी वेरी एग्जैक्ट के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? क्लोनिंग साइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू, एक और स्टेटमेंट कि मेरे पास ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर अगर यहाँ पर कोई रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट है तो ही मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेट्स से इसके पास इको R1 की साइट है तो मैं इसको इको R1 से डाइजेस्ट कर सकता हूँ, और डाइजेशन के बाद ये कैसा हो जाएगा? इट वुड बी लाइक दिस। यू गॉट माई पॉइंट। अब अगर इको R1 की इसके पास 2-3 साइट हो जाए, यहाँ पर भी इको R1 की साइट हो, यहाँ पर भी इको R1 की साइट है, तो क्या होगा? एक बार वो यहाँ से भी कट जाएगा, एक बार वो यहाँ से भी कट जाएगा। तो वेक्टर की तो आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब डीएनए कहाँ पे लाइगेट करोगे? प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको फिर से लाइगेट कर पाना। तो किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही साइट हो तो अच्छा है। अगर किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए मल्टीपल साइट्स हो गई तो जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाएगा? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मल्टीपल साइट फॉर ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विद कॉम्प्लिकेट द मॉलिक्यूलर क्लोनिंग और जीन क्लोनिंग। आइडियली सिंगल recognition site is preferred for one restriction endonuclease, as multiple site for the same would complicate the cloning process, आई बात समझ में बच्चों? अगर एक के लिए ही खूब सारी साइट्स हो गई तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्लोनिंग प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक साइट अच्छी है, मगर अगर इसके अंदर ये वाली जो साइट है BAM-H1 के लिए है और ये वाली जो साइट है ये लेट से SAL1 के लिए है, तो इससे ये समझ में आता है कि भाई आप अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इको R1 से कट किया है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं वेक्टर को, आपका BAM-H1 से कट किया है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपका SAL1 से कट किया है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कट एक ही बनेगा। यू गॉट माई पॉइंट? एक टाइम पर एक ही कट बनेगा। व्हाट आई एम टेलिंग यू, किसी एक के लिए एक ही साइट हो तो अच्छा है, पर अगर अलग अलग एंजाइम की साइट है तो वेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर मेरी कार में अलग अलग साइज़ की कुर्सियाँ हैं तो अलग अलग तरह के पैसेंजर्स को मैं हायर कर सकता हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? प्लीज से यस और नो। बट ये इतना स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, बट हैविंग डिफरेंट साइट फॉर डिफरेंट restriction endonuclease would increase its efficiency, तो भाई अगर एक के लिए मल्टीपल हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, पर अगर इसके पास अलग अलग एंजाइम के लिए सिंगल साइट है तो इस वेक्टर को मैं अलग अलग एंजाइम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मेरे पास लेट्स से एक वेक्टर है यहाँ पर, इसके पास साइट है इको R1, BAM-H1, SAL1, HIND2, HIND3, इतनी सारी साइट्स हैं। अब मेरे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पहली बार जब मैं काम करना शुरू किया तो मेरे पास इको R1 से कट किया था मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो मैं ये वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। अगली बार जो जीन मैं निकाल रहा हूँ BAM-H1 से मैंने कट किया था तो भी मैं वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैंने HIND2 से कट किया तो भी मैं ये वेक्टर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस वेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ गई है। और बात, ये जब भी यूज़ होगा, अगर इको R1 से यूज़ हुआ तो ये यहाँ से ओपन अप हो जाएगा, तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर BAM-H1 से यूज़ हुआ तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अलग अलग एंजाइम से डाइजेस्ट होकर ये एक ही जगह से ओपन अप होगा और आराम से जीन ऑफ इंटरेस्ट लाइगेट हो जाएगा। तो बेटा क्लोनिंग साइट क्या होती है? ये होती है रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसलिए यही वही साइट है, ये वो साइट है जहाँ पे आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिंक करते हैं, इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं इनके लिए लिंकर जीन। अदर नेम फॉर क्लोनिंग साइट इज लिंकर जीन।
अब मैंने आपको ये भी बताया कि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक साइट हो तो परफेक्ट है, कि मल्टीपल साइट उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देगी। मगर अगर अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग साइट हो तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप अलग अलग डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं पॉलीलिंकर जीन, पॉलीलिंकर जीन। तो क्लोनिंग साइट इज अदर नेम ऑफ पॉलीलिंकर जीन। एक क्लोनिंग साइट हो तो अच्छा है या ज़्यादा क्लोनिंग साइट हो तो अच्छा है? आंसर इज अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट हो तो बहुत अच्छा है। तो क्लोनिंग साइट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों मल्टीपल क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट, और आपकी बुक्स वगैरह में लिखा होता है MCS, दैट इज़ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो मेरे वेक्टर में एक वेक्टर के अंदर ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। अभी ना ये चार फीचर पढ़ा के एक वेक्टर बनवाएंगे आपसे कि यार एक अच्छा सा वेक्टर बनाओ, आइडियल सा वेक्टर बनाओ, तो शायद चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी। तो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बाद मल्टीपल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, पॉलीलिंकर जीन होना चाहिए। ये वेक्टर में वो जगह है जहाँ पे आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। आई गेस आई एम डन अप टू हियर, यस। नेक्स्ट, फिर तीसरा जो पार्ट था वेक्टर का, तीसरा जो फीचर था, अब आपने क्या किया, आपने एक ऐप से आपने एक ऐसी कैब को ढूंढा जो चलने लायक है, और आपने अपना पैसेंजर बैठा के उसको भेज दिया दूसरे शहर में। दूसरा शहर लेट से दिल्ली भेज दिया। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? होस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ भेज दिया? होस्ट में। अब उस होस्ट के अंदर इतना सारा डीएनए है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने डीएनए भेजा था वो रेप्लिकेट करके अपने प्रोडक्ट बना रहा है या उसका डीएनए अपने प्रोडक्ट बना रहा है? तो आपके पास एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन टैग होना चाहिए। पहले तो ये कि मेरे पास ना फॉर एग्जांपल इतने सारे होस्ट हैं, ये एक इकोलाई, दूसरा इकोलाई, तीसरा इकोलाई, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, और ये मेरे पास लेट से 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है। दिस इज़ 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड दिस अदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। पहला तो ये कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये किस किस सेल के अंदर एंटर हुए, किस सेल के अंदर एंटर नहीं हुए। जिस सेल के अंदर ये एंटर हो जाएंगे उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट सेल। जिस सेल के अंदर ये एंटर हो जाएंगे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट सेल। और जिसके अंदर एंटर नहीं हुए उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। क्योंकि आपको बताया था कि कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाई आई एम राइटिंग हियर RDT, आई शुड राइट हियर RDNA। कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जब होस्ट के अंदर जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे कैसे पता चलेगा इन सेल की ग्रोथ में कि इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है या नहीं है? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मार्कर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मार्कर लगा के भेजा, एक आइडेंटिफिकेशन टैग लगा के भेजा, वो ब्लू कलर का ही क्यों ना हो। तो जो सेल ब्लू हो गई, माने मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर मेरा जो प्लाज्मिड है वो उसके अंदर चला गया, और जो सेल ब्लू नहीं हुई उसके अंदर नहीं गया। यू गॉट माई पॉइंट? तो इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लोकेट करना चाहता हूँ, थर्ड जो फीचर होना चाहिए, डेट शुड बी सेलेक्टेबल मार्कर। डेट शुड बी सेलेक्टेबल मार्कर। मार्कर्स के बारे में मैंने बताया है आपको। यस, मार्कर्स आर दे कुड बी यूर, रिमेंबर डेट मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बारे में बताया होगा, LEG-Z के बारे में बताया होगा, ग्रीन फ्लोरोसेंट मार्कर के बारे में बताया होगा। तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या करते हैं? दीज आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, आइदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और दीज आर रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन में आप लिख लेंगे LEG-Z के बारे में। ठीक है बेटा, अभी बताता हूं क्या है। What I am trying to make you understand कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना ये ई कोलाई की कॉलोनीज हैं, 3 से ही बात कर लेते हैं, और इन ई कोलाई के अंदर कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं है, और ये मेरा प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, माने ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, और इस प्लाज्मिड के अंदर मैंने एक जीन एंटर किया है जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। तो अगर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इस इकोलाई में आ गया तो ये इकोलाई भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, और इसमें नहीं आया तो ये इकोलाई टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब दोबारा से इनको ग्रो कराने की कोशिश करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सेल ग्रो करेगी, ये सेल ग्रो नहीं करेगी। तो ये सेल ग्रो किसकी वजह से कर रही है? इस जीन की वजह से कर रही है।
और ये जीन क्या हो गया मेरा, मार्कर जीन। तो मुझे कहे में हेल्प कर रहा है ये, सिलेक्शन प्रोसेस में, ये हेल्प कर रहा है मेरा सिलेक्शन प्रोसेस में। तो जो मार्कर जीन है, फॉर एग्जांपल मैंने ना अपनी टैक्सी के ऊपर येलो कलर का पेंट लगा के भेज दिया खूब सारा क्रॉस मार्क, कि जहाँ भी होगी मुझे दिख जाएगी ये टैक्सी मैंने बुक की थी और ये मेरा जो है शहर के अंदर ये घूम रही है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से यूज़ करते हैं, मेनली हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं, कैनामाइसिन, और क्लोर एम्फिनिकॉल रेजिस्टेंट यूज़ करते हैं, क्लोर एम्फिनिकॉल, इवन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट भी कर लेते हैं। सो कॉमनली यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, tetracycline like tetracycline resistant gene, ampicillin resistant gene, एम्फिनिकोल रेजिस्टेंट जीन और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। तो समझ में आया इसके बारे में। रिपोर्टर जीन लेगजेड, देखो लेगजेड की कहानी सुनो। लेगजेड एक ऐसा जीन है जो जब एक्सप्रेस होता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं गैलेक्टोसाइडे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है, इसका नाम होता है रिपोर्टर एंजाइम। दिस एंजाइम इज रिपोर्टर एंजाइम। तो लेगजेड जब भी एक्सप्रेस होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, एंजाइम है। वो एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है, एंजाइम एक्ट करता है सर सबस्ट्रेट के ऊपर। इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्स गैल होता है मोस्ट कॉमनली। एक्स गैल का कंपोजिशन मैं भी लिखवा दूंगा आपको। और जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है तो एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है, एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। तो अगर जिन जिन सेल के अंदर ये एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है, ये जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो सारी सेल कैसी हो जाएंगी आगे चल के, ब्लू। और जिनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो कैसी होंगी, वो वाइट रहेंगी। तो दो तरह के आपके पास जो है वो सिलेक्टेबल मार्कर हो सकते हैं, कुछ कलर वाले और कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले। तो तीन प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट देयर शुड बी अ ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, और ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ही देता है आपको कॉपी नंबर के बारे में। जो सेकंड प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका बेटा मल्टीपल क्लोनिंग साइट और पॉलीलिंकर जीन। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, दीज आर द रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जहाँ से आप अपने वेक्टर को भी कट कर सकते हैं और अपनी उस पर्टिकुलर पार्ट में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर सकते हैं। तीसरा होता है सिलेक्टेबल मार्कर, और सिलेक्टेबल मार्कर आपको अनेबल करता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और टू सेलेक्ट recombinant and non-recombinant molecule. A marker, selectable marker, enables us to differentiate between recombinant and non-recombinants, as well as transformants and non-transformants। इतनी चीज़ समझ में आई बच्चों। तो तीन फीचर बता दिए मैंने। कार के अंदर एक्सीलरेटर होना चाहिए, कार चलने लायक होनी चाहिए। ये जो अपनी डीएनए वाली कार है इसमें चलने लायक का मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। देन आपको मैंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के साथ एलियन डीएनए को लिंक करना है, अदरवाइज वो नहीं मल्टीप्लाई कर पाएगा। दूसरा, कार में बैठने के लिए सीट होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास हो गई मल्टीपल क्लोनिंग साइट जिसको पॉलीलिंकर जीन भी कहते हैं। और तीसरा, कार को आप उस भीड़ में पहचान भी पाओ कि जो भी सेल्स वो ग्रो कर रही हैं उस 1000 लाख और करोड़ ऑफ सेल के अंदर आपकी ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है, आपकी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है, आपकी रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है, या आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है, ये सबको आप पहचान पाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ है आपके पास वो है साइज। साइज मस्ट बी स्मॉलर। वेक्टर का साइज छोटा होगा तो उसको यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। देखो बड़े साइज़ का अगर डीएनए है तो वो ब्रेकअप भी कर सकता है। मतलब ब्रेकअप का मतलब ये नहीं कि वो झगड़ा करके चला जाएगा कि मैंने नहीं खेलना, मुझे नहीं लेके जाना इसको। ब्रेकअप का मतलब ये है जब वो रेप्लिकेट करता है तो वो मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आइडियली और प्रीफरेबली जो साइज़ ऑफ वेक्टर है वो हम जनरली कंसिडर करते हैं इट शुड बी स्मॉल। पर ये भी समझ में आता है कि स्मॉल साइज़ ऑफ वेक्टर में स्मॉल साइज़ ऑफ इंसर्ट ही आ सकता है।
अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, मैं पूरे ह्यूमन जीनोम को मैप करना चाहता हूँ, तो स्मॉल साइज ऑफ वेक्टर तो काम नहीं आएगा। उस कंडीशन में तो मैं लार्ज साइज ऑफ वेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंसर्ट, वो कितना KB का इंसर्ट सपोर्ट करता है, बट प्रीफरेबली जो साइज ऑफ वेक्टर है डेट शुड बी वेरी स्मॉल। So there are four features which are very essential to develop a very perfect vector. First feature is origin of application. Second feature is your multiple cloning site. Third feature is your selectable marker. It could be your antibiotic resistant gene, or it could be your a gene which make an enzyme, and that enzyme produce that enzyme use a chromogenic substrate. Chromogenic का मतलब color producing. That enzyme use a substrate which produce color. तो ये आगे चल के जब वेक्टर का एग्जांपल मैं पढ़ाऊंगा अभी प्लाज्मिड का, दोनों ही यूज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइज ऑफ द वेक्टर शुड बी स्मॉल। तो ये तो हो गए जनरल फीचर्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच आर प्लाज्मिड। लेट अस स्टार्ट अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच आर प्लाज्मिड। पहले प्लाज्मिड पढ़ लेते हैं। दो अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा मैं प्लाज्मिड के, जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड होते हैं वेक्टर। उनको क्या किया है कि जो भी आपके नेचुरल प्लाज्मिड थे उन्हीं के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके उनको अपनी तरह बना लिया। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक कार ख़रीदी और उस कार को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से, जैसे भी आपको सीट चाहिए, जैसी आपको स्पीड चाहिए, जैसा आपको कलर चाहिए, आपने उसको वैसा बना लिया। तो जो ये दोनों एग्जांपल बताऊंगा मैं प्लाज्मिड के, दे आर आर्टिफिशियली मॉडिफाइड इनसाइड लेबोरेटरी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे यहाँ पर, that would be plasmid. Now please give me a very classy definition of plasmid first. चलो प्लाज्मिड के बारे में डिस्कशन कर ही लेते हैं। What are plasmid? Plasmid are these are circular, double-stranded, autonomously replicating, self-replicating, extra chromosomal piece of DNA. How you define plasmid? It's an circular, double-stranded, autonomously replicating or self-replicating, extra chromosomal piece of DNA. Are plasmid only and only found in bacteria? Answer is no. Plasmid are also found in yeast cell. Commonly found in bacteria as well as yeast cell. आपने पढ़ भी लिया, डू प्लाज्मिड हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज वेल। तो वो आपका देखो प्लाज्मिड के पास ज़्यादा वाइटल जीन तो नहीं होते, पर वो फिनोटाइप वगैरह या जीन फिनोटाइप वगैरह कंट्रोल कर लेता है। तो खैर पहला डेफिनेशन, प्लाज्मिड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ DNA होते हैं जो बैक्टीरिया एज वेल एज यीस्ट सेल से मिलते हैं। ठीक है बेटा, जो प्लाज्मिड है वो आपका ना बैक्टीरिया के साथ साथ यस इतना काफ़ी ठीक है। देन मैं प्लाज्मिड कई बार ना प्लाज्मिड बीमारी भी करता है। प्लाज्मिड जो है वो आपका अलग अलग तरह के फंक्शन करता है। मैं आपको अभी एक प्लाज्मिड बताऊंगा आगे चल के जिसका नाम होगा TI प्लाज्मिड, प्लाज्मिड फ्रॉम द बैक्टीरिया टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेसियंस। और वो जो TI प्लाज्मिड है वो विल्यूएंस के लिए यूज़ होता है, वो बीमारी फैलाने के लिए भी यूज़ होता है। तो प्लाज्मिड माइट बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शन। देखो प्लाज्मिड को आपको क्रोमोसोमल DNA से डिफरेंशिएट करना है तो प्लाज्मिड सर्कुलर होते हैं हमेशा। क्रोमोसोमल जो DNA है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, जो प्लाज्मिड होते हैं उनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, क्रोमोसोमल DNA के पास हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। देन जो प्लाज्मिड होते हैं उनके पास वाइटल जीन्स नहीं होते, क्रोमोसोमल DNA के पास वाइटल जीन्स होते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं उनके पास ना इंट्रॉन्स नहीं होती है, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ DNA, भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते चले जाओगे। जबकि जो आपके पास क्रोमोसोमल DNA होता है उसके पास एक्सॉन्स भी होती है, उसके पास इंट्रॉन्स भी होती है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं प्लाज्मिड को क्रोमोसोमल DNA से तो ये 3-4 डिफरेंस याद रख लेंगे। पहला, प्लाज्मिड हमेशा सर्कुलर रहेगा, वो लीनियर और सर्कुलर दूसरा हो सकता है। सेकंड, प्लाज्मिड के पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, क्रोमोसोमल DNA के पास हिस्टोन प्रोटीन होता है। प्लाज्मिड के पास वाइटल जीन नहीं होते हैं, क्रोमोसोमल DNA के पास वाइटल जीन होते हैं।
प्लाज्मिड के पास इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सोन होते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए के पास इंट्रॉन एक्सोन दोनों होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस याद रख लेना। All right, so let us discuss the first example of plasmid, and that example would be PBr 322. पहले इसका फुल फॉर्म, P stand for plasmid, BR represents the name of those scientists जिन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग्स, और इनके द्वारा मॉडिफाई करने वाला या मॉडिफाई होने वाला ये प्लाज्मिड नंबर 322 था। तो 322 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर हियर, 322 रिप्रेजेंट्स ऑर्डर हियर, इन विच सीक्वेंस दे वर डूइंग दैट थिंग। जो PBr 322 होता है बेटा, वो एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है। अब मैं ये आपको बता देता हूँ, मैंने आपको एक काम दिया है लेबोरेटरी में कि आपको एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाना है। तो आपने क्या किया, ई कोलाई के अंदर से कुछ प्लाज्मिड डीएनए को आइसोलेट किया और उसी को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब हम डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं इसकी PBr 322 का। तो जो प्लाज्मिड है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लीनियर, इट शुड बी डेट circular, it should be circular if I am not wrong. It should be single stranded or it should be double stranded. So ideally it should be double stranded. Ideally this plasmid should be double stranded. Is that clear up to here? तो मैंने एक सर्कुलर डीएनए बनाया और उसको मैंने डबल स्ट्रैंडेड कर दिया। अब ये मत कहें सर आपने इसके अंदर जो है ना वो हमें हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों नहीं शो कर रहे हैं। अब आप बड़े हो गए हैं, इतना तो समझ ही जाएंगे ना आप। लेट्स से दिस इज डबल स्ट्रैंडेड पीस ऑफ डीएनए। इज दैट क्लियर? इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम वेयर, लेट्स से फ्रॉम इकोलाई। दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ डीएनए which start replication. This is the special sequence of DNA which start replication. What should be the name of this site here? Yes please, मुझे थोड़ी आवाज़ आ रही है आप लोगों की। हाँ, this site is ori site for example, or let's say this is the origin of replication site here or ori site here. ठीक है बेटा। देन आपने क्या किया, इसके अंदर ना सिलेक्टेबल मार्कर लगा दिए। आपके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन यहाँ पे लगा दिया आपने, और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर जीन उस साइड लगाएंगे। PBr 322 में रॉड्रिग्स और बॉलिगर ने दोनों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ किए थे, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ किए थे। ठीक है बच्चों, लेट्स सी जो सिलेक्टेबल मार्कर आपने यहाँ पर पोस्ट किया है, this selectable marker is ampicillin resistant gene। जो selectable marker आपने यहाँ पर पोस्ट किया that is ampicillin resistant gene, और जो selectable marker आपने यहाँ पर पेस्ट किया है और यहाँ पर ऐड किया है इसमें that is tetracycline resistant gene। तो आपने क्या किया बच्चे, उस डबल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग पीस ऑफ डीएनए में जिसमें ओई साइट थी, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने, दो सिलेक्टेबल मार्कर ऐड कर दिए। अब इन सिलेक्टेबल मार्कर के साथ साथ आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट, आपको चाहिए मल्टीपल क्लोनिंग साइट। तो एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट, दो मल्टीपल क्लोनिंग साइट उन्होंने रखी इन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ साइट विच is specific to BAMH1. There is a site which is specific to BAMH1, और जो दूसरी साइट उन्होंने रखी यहाँ पर, प्लीज़ जूम आउट दिस पार्ट। हाँ, पहली जो साइट थी वहाँ पर वो कहाँ की थी बेटा, BAMH1 की। किस सीक्वेंस में है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। और जो दूसरी साइट रखी उन्होंने, दिस सेकेंड साइट हेयर इज़ फॉर SAL1, दिस सेकेंड साइट हेयर इज़ फॉर SAL1, right?
तो दो साइट रखी, एक है साल1 के लिए और एक है BAMH1 के लिए। कौन से जीन के अंदर है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। फिर उन्होंने दो साइट और रखी एंड देयर वाज टू साइट्स हियर इन द एम्फिसिन रेजिस्टेंट जीन। देयर आल्सो टू साइट्स हियर इन द एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। One is for Providentia stewarti PST1 and second is for Proteus vulgaris PUV1. So let's say यहाँ पे जो साइट है ये किस किस के लिए है? That is for PUV1। ये सारे एंजाइम मैं पहले बढ़ा चुका हूँ आपको। And this site is here for PST1। अब आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया है? आपके तीन चीज़ कंप्लीट हो गई है कि भाई इसके अंदर जो है ऑरिसाइट हो गए, इसके अंदर मार्कर जीन हो गए। मार्कर जीन कौन कौन से? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और इसके अंदर हो गई मल्टीपल क्लोनिंग साइट। 4 एंजाइम के लिए तो मैंने मार्कर जीन के अंदर ही है, कुछ ना साइट आउटसाइड मार्कर जीन भी थी, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा अभी। इसका जो साइज़ था वो अबाउट 4.3 KB था। इसका जो साइज़ था डेट वाज अबाउट 4.3 KB, 4362 बेस पेयर। डोंट गो ऑन द नंबर टू बी वेरी एग्जैक्ट। आपने इसको 4.3 KB याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 4.3 किलो बेस पेयर, राइट। अब आपके पास तीन चीज़ हो गई। फर्स्ट आपके पास हो गया ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। इस ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के लिए एक स्पेशल जीन होता है यहाँ पर जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, टू बी एग्जैक्ट। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये जो रोप जीन है दैट एक्चुअली कंट्रोल द कॉपी नंबर एंड दैट इज रेफर्ड एज टू, इसको उल्टा पढ़ते हैं, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे साथ में रोप जीन भी है। इज दैट क्लियर अप टू हियर? एंड हियर ये सीक्वेंस है बेटा, ये नॉन मार्किंग, यहाँ पे कोई मार्कर वगैरह नहीं है। और जहाँ पे मार्कर नहीं था वहाँ पर भी आपके ना 3 अलग अलग एंजाइम की क्लोनिंग साइट थी। देयर इज EcoR1, देयर इज CLAV1 एंड देयर इज अ साइट ऑफ HIND3। मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा इस बात को। और ये जो रोप जीन था यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन साइट उन्होंने रखी थी फॉर PVU सेकेंड। पहले ये डायग्राम समझ लो, पहले इसको समझ लें आप, उसके बाद मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको। PBr322 इसका जो साइज होता है वो होता है बेटा अबाउट 4.3 बेस पेयर। देन इसके अंदर जो मार्कर होते हैं वो 2 मार्कर है, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। इन दोनों मार्कर में 2-2 मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, 2-2 क्लोनिंग साइट है, पॉलीलिंकर जीन है या लिंकर जीन में बोल दूं। अगर मैं MCS की बात करूं, BAMH1 एंड SAL1 ये कहाँ पर है? ये तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है। और PUV1 एंड PST1 ये कहाँ के अंदर? ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर है, ठीक है। और 3 साइट और CLAV1, HIND3 एंड EcoR1। CLAV1, HIND3 एंड EcoR1 ये कहाँ पर होती है बेटा? दे आर प्रेजेंट इन द नॉन मार्कर रीजन, दे आर प्रेजेंट इन नॉन मार्कर रीजन, ठीक है बेटा अब तक। फिर यहाँ पर होती है एक स्पेशल जीन और है यहाँ पर जिसको बोलते हैं रोप एंड डेट कोड्स फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ये रोप होता है, काहे के लिए कोड करता है? इट कोड फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, कोड फॉर प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। और रोप जीन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको चेक करने के लिए एक मल्टीपल क्लोनिंग साइट यहाँ पर भी रख देते हैं, डेट इज PUV सेकेंड। तो मैं PBr322 को पहले एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी वर्किंग पे चलेंगे।
तो जो बच्चे PBr322 होता है आपका, वो आपका आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस artificially synthesized plasmid in laboratory is PBr322. The most famous artificially synthesized plasmid in laboratory is PBr322. It is having two marker gene. One is for tetracycline resistant, second is for ampicillin resistant. Marker gene have recognition site for BAMH1 and SAL1 in tetracycline and PST1 and PV1 in ampicillin. Non-marker region have restriction site for EcoR1. Non-marker region have restriction site for EcoR1, CLAV1 as well as Hint3. Then near to ORI site there is a special sequence of DNA which we call ROB gene, and that ROB gene code for the protein which control replication. That code for the protein of replication. इसलिए ROB को बोलते हैं protein of replication. And within that gene we are having another cloning site which we call PVU second. एक साल सवाल पूछा गया था कि जो PUV in PBr322 PUV second का पोजीशन कहाँ होता है. Answer to that question was in the sequence of ROB gene. Coming on their copy number, do you know what is the copy number of that PBr322? PBr322 का copy number इतना ज़्यादा नहीं होता, it is about 15 to 20 only. अगर हम कॉपी नंबर की बात करें, PBr322 का जो कॉपी नंबर है डेट इज अबाउट 15 to 20 ओनली. अब ये काम कैसे करते हैं, इससे वर्किंग ऑफ PBr322 वो बता देता हूँ. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑफ PBr322. आर वी डन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ PBr322. देखो PBr322 का डायग्राम ना अपनी NCERT में भी है, और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं. कई बार तो आपको ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, और इसके रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो इसकी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अभी इसकी वर्किंग मैं बताऊंगा कि कैसे कौन सा जीन ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है सिलेक्शन में, और कौन सा जीन रिकॉम्बिनेंट में हेल्प करता है. इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर ऐड होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना ये अभी अगले लेक्चर में बता दूंगा, पर अभी एक चीज़ समझा देता हूँ. लेट्स से आपने क्या किया था, आपके पास ये जीन ऑफ ये सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस ऑफ DNA जब एक्सप्रेस होता है, दिस सीक्वेंस ऑफ DNA व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड, तो व्हाट हैपन्स, ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो टेट्रासाइक्लिन के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है. इसलिए इस जीन को क्या बोलते हैं हमने, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. और इस जीन के अंदर दो साइट है, BAMH1 और SAL1. इस जीन के अंदर दो साइट है, BAMH1 और SAL1. अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जीन हियर, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है. अब यहाँ पर BAMH1 है. मैंने अपने DNA को कहाँ से कट किया है, माई जो DNA है जीन ऑफ इंटरेस्ट वो कैसा है, लेट्स से दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट हियर. अब इसको भी मैंने BAMH1 से कट किया है, इसको भी BAMH1 से कट करूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा. जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड करूँगा तो मेरे पास नया सीक्वेंस कैसा आएगा, द न्यू सीक्वेंस वुड बी समथिंग लाइक दिस इफ़ आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग. ये मैं आगे समझाऊंगा आपको पूरा, जस्ट गिविंग यू आइडिया. द न्यू सीक्वेंस वुड बी समथिंग लाइक दिस. तो जब इस सीक्वेंस के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बाद में. क्या अब ये वो प्रोटीन बना पाएगा जो टेट्रासाइक्लिन को कोड कर रहा, रेजिस्ट कर रहा था? आंसर वुड बी नो. तो आपको मैं बताऊंगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, और जब वर्किंग पढ़ेंगे तो डैट वुड बी वेरी वेरी क्लियर. तो चलो आज के लेक्चर के लिए हम यहीं रुक जाते हैं. आज के लिए हम इतना ही. टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज वेक्टर, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वेक्टर अलॉन्ग विद द डायग्राम ऑफ PBr322. इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछें. वर्किंग मैं कल वाले लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगा, वर्किंग ऑफ PBr322, और साथ में एक और एग्जाम्पल डैट वुड बी यूर PUC8 plasmid developed at University of California that I would be including in the next lecture. साइड बाय साइड अपना एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच भी पढ़ते जाइए. प्लीज़ गो थ्रू द ऑल पैकेजेस एंड डू आस्क क्वेश्चंस. NCERT is not enough only. ठीक है. तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू. क्लास इज ओवर.